بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے کیمیوکیٹ ٹیسٹ فیز 1 کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم سولو کریں گے کیمیوکیٹ 2022 کے ہونے والے پاس پیپر کو۔ اس ویڈیو پارٹ میں ہم بایولوجی اور جنرل نالج، اسلامیات اور انگلش کے MCQ سولو کریں گے۔ دوستوں، اس سے پہلے کیمسٹری اور فزکس والے پارٹ آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں پن کروں گا۔ دوستوں، کیمیوکیٹ ٹیسٹ 2024 پریپریشن کے لیے ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنائے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں پن کروں گا۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اب تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ کائنڈلی میرا اس چینل بیس آف سکسس کو سبسکرائب کریں اور کیمیوکیٹ ٹیسٹ سیریز 2024 کے لیے ہمارے اس گروپ کا ممبر بنیں۔ آئیے اپنا ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 66۔ In a vertebrate, a reflex action is introduced by، یعنی vertebrate مین جن کے بیک بون ہوتے ہیں۔ دیے گئے آپشن میں سے vertebrate ریفلیکس ایکشن کس نے انٹروڈیوس کی؟ آپشن اے سینسر نرو، آپشن بی موٹر نرو، آپشن سی آٹونومک رسپانس، آپشن ڈی سمپیتھک نرو۔ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے سینسری نرو۔ Question number 67. The disease in response to repeat or continuous stimulation is called۔ دیے گئے چار آپشن میں سے اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی ہیبیچویشن۔ Question number 78. Trial and error learning has no role in۔ آپشن اے operant learning، آپشن بی classical conditioning، آپشن سی insight، آپشن ڈی امپرنٹنگ۔ تو دوستو، یہ سوال غلط لیا گیا ہے۔ اس کا جواب یوں ہونا چاہیے تھا کہ انسٹرکٹ ہونا چاہیے تھا۔ آپ خود بھی اسٹڈی کریں اور بعد میں صحیح جواب کامنٹس کر دیں۔ کوسچن نمبر 69۔ وچ ون آف دا فالوئنگ کلاس دے میمری گلینڈ ٹو انلارج ایٹ پیوبرٹی۔ تو دوستو، دیے گئے چار آپشن میں سے اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی ایسٹروجن از اے کریکٹ آنسر۔ Question number 71. Embryo implants in the dash of the uterus۔ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی میومیٹرم از اے کریکٹ آنسر۔ سوال نمبر 72. The most important hormone in initiating and maintaining lactation after birth is۔ The correct answer of this question is option C, prolactin۔ Question number 73. Which of the following structure is formed from ectodermal tissue؟ Option A brain، Option B muscles، Option C skeleton، Option D bone۔ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے Option A brain is a correct answer۔ Question number 74. The pattern of sex determination found in Drosophila is۔ تو دوستو، دیے گئے چار آپشن میں سے اس سوال کا صحیح جواب ہے Option B XY and XX۔ سوال نمبر 75۔ The female in butterflies is۔ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے XX۔ نمبر 76۔ A permanent changes in the genetics structure of a gene is called۔ آپشن اے translocation، آپشن بی linkage، آپشن سی mutation and آپشن ڈی non-disjunction۔ تو دوستو، دیے گئے چار آپشن میں سے اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی میوٹیشن۔ کوسچن نمبر 77۔ A chromosome with unequal lengths of its arms is۔ دوستو، دیے گئے چار آپشن میں سے اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی سب میٹاسینٹک۔ سوال نمبر 78۔ If the condom consisted of only 2 nucleotides, there would be many possible condoms۔ آپشن اے 4، آپشن بی 8، آپشن سی 16، آپشن ڈی 20۔ تو دوستو، دیے گئے چار آپشن میں سے اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی 16۔ سوال نمبر 79۔ Human appendix coccyx and insitating members of the eye are۔ دوستو، دیے گئے چار آپشن میں سے اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یعنی ویسٹیگل آرگنز۔ کوسچن نمبر 80۔ Similarity in characteristic resulting from common ancestry is known as۔ The option B is the correct answer, homology۔ Question number 81. What is the direction of energy flow in ecosystem؟ آپشن اے always indirectional، آپشن بی always bidirectional، آپشن سی in any direction،
Option D, always down direction. A is a correct answer among the four options. Always unidirectional. Question number 82. The rate at which the new individuals are added to population in a unit time is option A density, option B natality, option C mortality, option D dispersion. दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी natality. In a succession litho series takes place on option A sand, option B water, option C forest floor, option D bare rocks. The correct answer of this question is option D bare rocks is the correct. Question number 84. The DNA fragment has strictly and due to. दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी इंडोन्यूक्लियोसिस. सवाल नंबर 85. The first scientifically approved vaccine was option A oral polio vaccine, option B smallpox vaccine, option C MMR vaccine, option D टीटान वैक्सीन. दिए गए चार ऑप्शन में से सबसे पहला साइंटिफिकली अप्रूव वैक्सीन कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी स्मॉल पॉक्स सबसे पहले साइंटिफिक अप्रूव वैक्सीन है. क्वेश्चन नंबर 86. देयर आर डैश व्यूज ऑन द इशू ऑफ गिविंग बोनस टू द एम्प्लॉइज. ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट, ऑप्शन बी डिवर्जेंट, ऑप्शन सी मॉडेस्ट, ऑप्शन डी एडवर्स. तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट. दोस्तों इसके बाद इंग्लिश पोर्शन शुरू होता है, तो अभी इंग्लिश पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे. सवाल नंबर 87. एड सम मिल्क एंड शुगर डैश यूर टी. ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी इन टू. पहले पास पेपर में ज़्यादातर स्टूडेंट ने इन की थी, तो इन गलत है दोस्तों. तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 2 यानी एड सम मिल्क एंड शुगर टू यूर टी. दोस्तों अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला हम प्रीपोजिशन पर भी एक वीडियो बनाएंगे और आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 88. पाकिस्तान हैज़ टू फ्लैग डैश टू विन द टेस्ट सीरीज़ फ्राम इंडिया. दोस्तों ये सवाल जनरल नॉलेज से लिया गया है. तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी टूट एंड नील. यानी पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के बहुत अगेंस्ट कंट्री है, तो इसी वजह से टूट और नील का प्रोवर्ब इसके लिए यूज़ होता है. क्वेश्चन नंबर 89. द नंबर ऑफ फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स एट द पार्टी डैश अमेजिंग. ऑप्शन ए वास, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन डी हैड, ऑप्शन डी हैव हैड. तो ये सवाल टेक्निकल है, तो अगर हम देखेंगे इसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ हुआ है. आखिर में अमेजिंग में देखें तो हमेशा आईएनजी के साथ वर्ड के फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, तो वर्ड के फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट. तो ये सवाल पास्ट कंटिन्यूअस से लिया गया है. फैमिली के साथ वर इस्तेमाल होता है, तो वर इज़ अ करेक्ट आंसर. दोस्तों आखिरी सवाल तो ब्लर था, इसी वजह से मैंने हल नहीं किया. अब नेक्स्ट सवाल है 91. उर्दू वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन. यानी उर्दू को पाकिस्तान का कौमी ज़बान कब डिक्लेयर किया गया? ऑप्शन ए अप्रैल 1950, ऑप्शन बी अप्रैल 1955, ऑप्शन सी अप्रैल 1954, ऑप्शन डी अप्रैल 1952. तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अप्रैल 1950 को उर्दू को पाकिस्तान का कौमी ज़बान करार दिया गया था. सवाल नंबर 92. फर्स्ट इंडो पाक वार वाज फाइट इन. आफ्टर इंडिपेंडेंट पाकिस्तान एंड इंडिया वर फाइट 3 टाइम. पहला जंग 1965 मेन जंग, उसके बाद 1971-72 यानी जिस वक्त बंगाल आज़ाद हुए थे, उसके बाद कारगिल वार. तो मेन वार है, बाकी छोटा तो होते छोटे मोटे लड़ाई तो होते. तो पहला वार जो है 1965 यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 93. अलामा मोहम्मद इकबाल डाइड ऑन. तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1938 को वो फौत हो गए. सवाल नंबर 94. व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड. तो दोस्तों पाकिस्तान बनने के बाद 9 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव नहीं था, वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन पर आगे पीछे करके वो चलाते थे. तो बला खैर कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड हो गए.
29 फरवरी 1956 को अप्रूव्ड हो गए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 29 फरवरी 1956। क्वेश्चन नंबर 95, हु रोट द नेशनल एंथम। तो दोस्तों इसमें ये पूछ रहा है कि कौमी तराना किसने लिखा। तो ऑप्शन ए चौधरी मोहम्मद अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली गौहर, ऑप्शन सी हफीज़ जलांधरी, ऑप्शन डी शौकत बदायूनी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस पेपर में किसी बंदे ने गलत लगाया है, मोहम्मद अली गौहर पर लगाया है, मगर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाफिज़ जलांधरी कौमी तराने को लिखा था। सवाल नंबर 96, फॉर हाउ मेनी ईयर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना। दोस्तों सवाल में ये पूछा गया है कि कितने साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहा। तो ये बात आपको कंफर्म है, नबूवत के 10 साल बाद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 10 साल मदीना में गुजारा है, बाकी मक्का में गुजारा है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सिर्फ 10 साल। क्वेश्चन नंबर 97, विच प्रॉफिट वाज एबल टू टॉक विद एनिमल्स एंड जिन्स। यानी कौन सी पैगंबर जिन्नात और जानवरों से बातें करते थे। ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी प्रॉफिट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी प्रॉफिट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी प्रॉफिट हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रॉफिट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस तरह मौजज़ा दी थी कि वह जानवरों और जिन्नात के साथ बातें किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 98, विच वाज द फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम। ऑप्शन ए अब्वा, ऑप्शन बी बदर, ऑप्शन सी खंदक, ऑप्शन डी मूता। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, ये काफ़ी इजी सवाल है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, विच सूरा इज़ कॉल्ड मदर ऑफ कुरान। यानी किसी सूरा को कुरान की माँ कहा जाता है। ऑप्शन ए सूरह बकरा, ऑप्शन बी सूरह मरियम, ऑप्शन सी सूरह निसा, ऑप्शन डी सूरह फातिह। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी सूरह फातिह। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इज़ कॉल्ड डैश, मैन ऑफ अल्लाह, खलीफ ऑफ अल्लाह, ऑप्शन सी सॉर्ड ऑफ अल्लाह, ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ अल्लाह। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, स्पीकर ऑफ अल्लाह। तो दोस्तों बलाखिर हमने 2022 के पास पेपर हमने सॉल्व कर दी। इससे पहले 2023 के पूरा पेपर इस चैनल पर अपलोडेड है, फ़ेज़ 1 के, फ़ेज़ 2 के और फ़ेज़ 3 के। तो आखिर में आप तमाम दोस्तों के लिए दुआ भी मांग रहा हूँ कि अल्लाह आप तमाम दोस्तों को कामयाब करे और आपके मेहनत में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।